Good evening, student. In the previous class, we have studied about the chemical reaction, characteristics of chemical reaction. Now today we are going to start a new topic, that is chemical equation. What is the definition of chemical equation? How can we define a chemical equation? Chemical equation may be defined as method of representing a chemical reaction in terms of symbols and formulae of the substances. Method of representing a chemical reaction in terms of symbols and formulae of substances that take part in chemical reaction. मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम जब बताते हैं, लिखते हैं, तो उसको सिंबल, उसमें रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको सिंबल और फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करना, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. और वी कैन से we write any chemical reaction in terms of symbol and formulae. This representation of chemical reaction in terms of symbol and formulae, this is known as chemical equation. For example, suppose we take an example, carbon combined with oxygen, it forms carbon dioxide. Suppose this is a chemical reaction. In this chemical reaction, here carbon combined with oxygen and it forms carbon dioxide gas. Now when we write this chemical reaction in terms of symbol and formulae, we here use symbol of carbon is C, oxygen O2 and formula of carbon dioxide CO2. So this equation is known as chemical equation. This reaction, above reaction, is represented by symbol and formulae. Carbon combined with oxygen, it forms carbon dioxide. This chemical reaction is represented by symbol of carbon, oxygen, formula of carbon dioxide. So this chemical reaction is represented by this equation. By seeing this equation, we can say that carbon combined with oxygen, it forms carbon dioxide. So this is known as chemical equation. Method of representing chemical reaction in terms of symbols and formulae of substances. जो भी substances रिएक्शन में भाग लेते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिंबल और फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करना, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन. सपोज वी टेक अनदर एग्जांपल. हम कोई दूसरा एग्जांपल इसको लेते हैं इसको समझाने के लिए. सपोज वी टेक जिंक कंबाइंड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. सपोज दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. ये कोई केमिकल रिएक्शन है. जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाता है? जिंक सल्फेट plus hydrogen gas. Now when we write this chemical reaction in terms of symbol and formulae, जब इसी को हम सिंबल और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करें तो here we write zinc Zn, sulfuric acid H2SO4, zinc sulfate ZnSO4 plus hydrogen H2. So this is known as chemical equation. It is the chemical equation for this chemical reaction. इस chemical reaction के लिए ये हमारी क्या हो गई? केमिकल इक्वेशन हो गई. तो रिप्रेजेंटेशन ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले, दिस इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करना, उसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं. रिएक्टेंट मींस दोज सबस्टेंसेस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. एंड प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट आर दोज सबस्टेंसेस
that produced after the chemical reaction. In this chemical reaction, zinc and sulfuric acid, they are the reactant, and ZnSO4 and hydrogen, they are known as product. Reactant, product. Reactant, those substances that take part in chemical reaction. Product, those substances that are produced during a chemical reaction. So general, this is the concept of chemical equation. This is the definition of chemical equation. Now, how many types of chemical equations are there? There are generally two types of chemical equation. Chemical equation may be balanced and they may be unbalanced. Chemical equations कितने प्रकार की हम कह सकते हैं? दो प्रकार की, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. बैलेंस्ड जैसा कि नाम है, बैलेंस्ड का मतलब ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स विल बी सेम. एग्जाम्पल बैलेंस्ड का, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं. सपोज वी टेक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, 2Na plus Cl2 2NaCl. In this example, we can see here there are two atoms of sodium, one molecule of Cl, or we can say two atoms of Cl, and these are on the reactant side. On the reactant side, number of sodium 2, Cl also 2. On the product side, sodium, number of sodium atom, they are 2. Number of Cl, they are also 2. So this is the example of a balanced chemical equation. Balanced means in which number of atoms of different element are same. Number of atoms are same on the reactant side and on the product side. Balanced chemical equation का मतलब जिसमें एक ऐसी chemical equation जिसमें एटम्स की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ क्या हो, सेम हो. Such type of chemical equation is known as balanced chemical equation. एग्जाम्पल क्या देखा, सोडियम कंबाइंड विथ क्लोरीन, इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड सभी लोग जानते हैं साल्ट है, कॉमन साल्ट. नाउ दिस सोडियम कंबाइंड विथ क्लोरीन, इट फॉर्म sodium chloride. In this chemical equation, number of sodium atom on the reactant side and product side, both sides are equal. Number of Cl on reactant side, product side, both are same. So this is the example of balanced chemical equation. Next example, कोई दूसरा example हम लेते हैं balanced chemical equation का. Another example of balanced chemical equation. C plus O2 CO2. C plus O2 carbon plus oxygen carbon dioxide. In this chemical equation, number of carbon atom on the reactant side 1, number of oxygen atom 2. On the product side, number of carbon atom is 1 and number of oxygen atom 2. So this is also the example of balanced chemical equation. ये भी किसका example है हमारा, balanced chemical equation, because number of atoms of carbon and oxygen are same on the reactant side and on the product side. So balanced chemical equation may be defined as such type of chemical equation in which number of atoms of different element, यहाँ पे देखिए कार्बन एलिमेंट का एटम कौन सा है, कार्बन. ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स कौन से, ऑक्सीजन. नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, बोथ साइड आर सेम. दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स कैसे हैं हमारे, सेम है, और बी कैन से इक्वल है. तो सच टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ऐसी केमिकल इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ ऑन द अदर हैंड, सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस्ड में क्या होगा हमारा,
इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड नाम ही इसका अनबैलेंस्ड। सच टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ atoms of elements are not same, जिसमें नंबर ऑफ एटम जो होंगे अलग अलग एलिमेंट्स के वो सेम नहीं होंगे। इसका एग्जांपल लें, सपोज H2 प्लस, सपोज हमने लिया यहाँ पे O2 और यहां लिख दिया हमने H2 प्लस O2 और यहां लिख दिया हमने H2O। इस केमिकल रिएक्शन को हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। लेकिन इस केमिकल इक्वेशंस को अगर हम देखें तो क्या ये हमें बैलेंस दिख रही है? क्या ये बैलेंस है? रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, number of oxygen atom is 1. So it is unbalanced chemical equation. Now we have to balance this. ये unbalanced इसको हम बैलेंस कैसे करें? बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ एटम बोथ साइड हमें सेम करना है। सेम कैसे करेंगे आप देखिए, हाइड्रोजन अभी दोनों तरफ क्या है हमारे सेम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। मीन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कहाँ कम है? प्रोडक्ट में। तो ऑक्सीजन को नंबर ऑफ एटम को इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें 2 से करना पड़ेगा। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे हम कि जितने भी आप स्पीसीज लिखेंगे उनको ब्रैकेट में लिख लें, उनको ब्रैकेट में ही मान के चलें। और अगर ऑक्सीजन आपको यहाँ ऑक्सीजन आपके कितने हैं? 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है आपका? 1 है। और 1 से अपन को कितना करना है? ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 करना है। तो आप केवल सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई किस में करेंगे? कहाँ करेंगे? आगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसको फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पे। देखिए रिएक्शन क्या लिखी थी हमने? H2 प्लस O2 H2। इसमें क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन आर से ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना है? 2 है। ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हमने क्या बताया? इसको हम किस में मानेंगे? ब्रैकेट में मान के चले। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम? आगे 2 से करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा हमारा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हो गए। रिएक्टेंट यहाँ एरो लगाया हमने, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में ऑक्सीजन कितने हमारे यहाँ पे? 2। यहाँ ऑक्सीजन भी हमारे कितने हो गए? 2। बट हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गए हमारे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे? आप 2 2 जा 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे? 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए? 2 हो गए। तो पहले रिएक्शन क्या थी हमारी? अनबैलेंस थी। फिर हमने क्या किया? इसको बैलेंस्ड किया। तो अनबैलेंस्ड को बैलेंस इस तरीके से हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम, इफ नंबर ऑफ एटम आर नॉट सेम, अगर एटम्स की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ सेम नहीं है तो वो रिएक्शन हमारी इक्वेशन क्या कहलाएगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। इफ नंबर ऑफ एटम आर सेम, नंबर ऑफ एटम अगर हमारे सेम है तो उसी को हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको समझने के लिए अनबैलेंस्ड के लिए एक एग्जांपल आपको और बताते हैं। अभी अनबैलेंस्ड के लिए एग्जांपल अपन देखें, सपोज हमने लिया N2 प्लस H2, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, क्या बना हमारा? अमोनिया। इस केमिकल इक्वेशंस को देखें आप, नाइट्रोजन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म अमोनिया। इट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड क्यों है? ऑन द रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन कितना है हमारा? 2, हाइड्रोजन आल्सो 2, नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड 1, हाइड्रोजन 3। नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। हाउ कैन बी बैलेंस? इसको बैलेंस करना है तो हम कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले नाइट्रोजन को कंपेयर करें। आप फर्स्ट वी कंपेयर नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है हमारा 1। अब नाइट्रोजन को कितना करना है हमें 2 करना है। तो आपको इसके पहले हमने क्या बताया, आपको कंप्लीट ब्रैकेट में लेके इसके आगे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, अब हमारे 1 से 2 हो गए, बट हाइड्रोजन कितने हो गए आपके H3 और 2 इंटू 3 कितना हो गया, हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया। रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन सेम, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन एटम सेम, बट हाइड्रोजन एटम प्रोडक्ट में कितना है हमारा 6 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है हमारा, अभी हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो कितना करना है हमें 6 करना है। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे हमारे 6 हो जाएंगे। तो इन दिस वे वी कैन बैलेंस्ड, इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट है बैलेंसी का। बैलेंसी का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सिंपल रिएक्शंस होती हैं बैलेंस करने के लिए। हमारा एक साइंस में चैप्टर भी है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आप बैलेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें हमें बैलेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो उसमें अपन देखेंगे आगे इसको डिटेल में पढ़ना है बैलेंसी का कॉन्सेप्ट। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकता है, नो प्रॉब्लम। तो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड दोनों में डिफरेंस क्या पढ़ा हमने, इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम, बैलेंस्ड में क्या एग्जांपल पढ़ा, सपोज बैलेंस्ड का हमने जो एग्जांपल पढ़ा था, इन द केस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम आर सेम, एटम्स की संख्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कार्बन कितना है यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितना पड़ा था अभी 2, प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, ऑक्सीजन 2। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऑन द अदर हैंड अनबैलेंस्ड का क्या पढ़ा था हमने, H2 प्लस O2 H2O, इट इज द एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड chemical equation, balanced and unbalanced chemical equation. In this chemical equation number of hydrogen atom on the reactant side 2, oxygen atom also 2, hydrogen atom on the product side 2 and oxygen 1. Number of hydrogen atom are same but number of oxygen atom are not same. So it is the example of unbalanced chemical equation. So this is the basic difference between the balanced and unbalanced chemical equation. In balanced chemical equation, number of atoms are same on the reactant and product side, but in case of unbalanced chemical equation, number of atoms are not same on the reactant and product side. Reactant और product side number of atoms अगर हमारे same है तो ये balanced है, reactant और product में नंबर ऑफ एटम अगर हमारे सेम नहीं है तो ये हमारा एग्जांपल होगा किसका, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। और अनबैलेंस्ड को हम बैलेंस कर सकते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसी, बैलेंसी का कॉन्सेप्ट लगा के और नंबर ऑफ एटम को इक्वल करके मल्टीप्लाई करके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशंस तो अभी हमने एग्जांपल देखी, जैसे एग्जांपल देखा था C प्लस O2 CO2। मोर इंफॉर्मेटिव का मतलब किसी केमिकल रिएक्शन से, किसी केमिकल इक्वेशन से हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे मिले, उसके लिए हम किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, इक्वेशन में। जैसे केमिकल इक्वेशन सपोज हमने ये लिखी अभी, तो इसमें आप देख रहे हैं C फॉर कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बट वी कैन मेक दिस केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, इसको और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हम बना सकते हैं, इससे और ज्यादा जानकारियां हमें मिले। अभी तो देखने पे केवल ये पता चल रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बाय इंडिकेटिंग स्टेट बताकर। स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। सॉलिड के लिए हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट में S, लिक्विड के लिए L,
गैस के लिए G, और एक्वस के लिए क्या यूज कर सकते हैं, AQ। किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो उसके लिए कुछ सिंबल्स का हम यूज कर सकते हैं। सॉलिड रिप्रेजेंटेड बाय S, लिक्विड L, गैस G, एक्वस AQ। एक्वस हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, वाटर सॉल्यूशन, किसी भी सबस्टेंस का जो वाटर सॉल्यूशन होता है दैट इज नोन एज एक्वस, उसको हम एक्वस कहते हैं। सपोज दिस इज अ केमिकल इक्वेशन, इसको मोर इंफॉर्मेटिव, हाउ मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, इससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिले, कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सॉलिड के लिए सपोज कार्बन हमने लिखा S लिख दिया, ऑक्सीजन है गैस G लिख दिया, CO2 हमारी गैस है हमने G लिख दिया। बाय यूजिंग दीज सिंबल्स, इन सिंबल्स का यूज करके वी कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट वेदर द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो फर्स्ट क्या है आपका कि हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, स्टेट लिख सकते हैं मैटर की, कि कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या वाटर सॉल्यूशन है, तो उसको एक्वस के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेकंड है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज। हीट चेंज मीन्स देयर आर सम केमिकल इक्वेशन, many chemical reaction are there in which either heat is absorbed or heat is released। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनको कराने के लिए या तो हम हीट को रिलीज करते हैं, या तो हीट उनमें रिलीज होती है, निकलती है, या क्या कहते हैं रिएक्शंस को कराने के लिए हीट हम उनको देते हैं। तो हीट चेंज के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। There are two types of chemical reaction, exothermic and endothermic, on the basis of heat change। इसका एग्जांपल लेते हैं, अभी सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सपोज वी बर्न कार्बन in presence of oxygen, formation of carbon dioxide plus heat take place। कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस plus heat। There are some chemical reactions in which heat energy is released। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट एनर्जी क्या होती है, हमारी रिलीज होती है, निकलती है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होगी, उनमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के साथ प्लस में क्या लगा देते हैं, हीट लगा देते हैं। प्रोडक्ट के साथ प्लस में क्या लगा देंगे आप, हीट लगा देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल अभी अपन ने देखा है यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल देख लें, मीथेन गैस CH4, ये नेचुरल गैस बायोगैस में पाई जाती है। मीथेन को हम कंबशन कर रहे हैं, इसको बर्न करते हैं। सपोज वी बर्न मीथेन गैस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी। हीट, मीथेन एक फ्यूल है, फ्यूल के फॉर्म में हम इसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, such type of chemical reactions are known as exothermic chemical reaction। On the other hand, some chemical reactions are in which heat energy is absorbed। Suppose nitrogen plus oxygen, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हमें मिलाना है तो दोनों को क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो दोनों कंबाइंड होकर बनाएंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ऊपर वाली रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है, इसमें क्या देखा हमने, हीट एनर्जी रिलीज होती है। सेकंड एंडोथर्मिक, इसमें क्या देख रहे हैं, हीट एनर्जी, हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस का साइन लगाए, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट, जिसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होगी, एंडोथर्मिक
जिनमें हीट एनर्जी क्या होती है, हमारी एब्जर्व होती है। तो वी कैन इंडिकेट चेंज ऑफ हीट by writing plus sign on the product side and by writing plus sign on the reactant side। अगर हीट की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो हम रिएक्टेंट साइड प्लस लगाते हैं, और अगर किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, तो प्रोडक्ट साइड हम हीट लगाते हैं। सो वी कैन इंडिकेट दिस चेंज ऑफ हीट इन दिस फॉर्म। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द last point, that is indicating condition. If you have any kind of problem, you can contact me on my WhatsApp number. Thank you.